So, good morning, students. Up to last class, we have discussed the question answers of chapter properties of the matter. बच्चों, in course of that chapter, I want to discuss two questions only. Rest of the questions we have discussed earlier. All the concepts I have discussed, explained to you. The one question arise over here that how the solid change directly into gas or not? Yes, a solid directly change into gas लाइक कैम्फोर कपूर जो हम लोग यूज करते हैं बच्चों, कपूर को जब जैसे उनको जलाते हैं तो कपूर सीधा हवा में उड़ जाता है, कपूर सीधा हवा में उड़ जाता है, वो मेल्ट नहीं होता, पिघलता नहीं है। कपूर की गोलियां जो होती है इसी टाइप से जो हमारे नेपथेलिन बोल्स हम लोग कहाँ यूज करते हैं बच्चों, याद आया? नेपथेलिन की गोलियां कहाँ यूज करते हैं? नेपथेलिन बोल्स आर यूज्ड टू स्टोरेज ऑफ आर क्लोथ्स, जो कपड़े वगैरह होते हैं, पुराने कपड़े होते हैं, रजाइयां होती हैं, उनमें नेप्था बोल्स हम लोग डाल देते हैं। क्या डालते हैं बच्चों? नेप्था बोल्स। नेप्था बोल्स क्या कहते हैं इनको? नेपथेलिन बोल्स। यस, वेरी गुड। इसी टाइप से हम लोग जो है देयर आर सम अदर मटेरियल्स आल्सो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वाटर साइकिल how do the three states of the matter, three forms of the water changes? So we can say water in the on the mountains, Himalayan region, polar regions, ice caves, glaciers. In the form of glaciers, it is deposited. And you know well, a number of rivers arise from the Himalaya. अब इस हिमालय से पानी जो होता है नीचे कंटिन्यू वाटर मेल्ट होता रहता है, और वाटर मेल्ट होता रहेगा, नीचे रिवर्स गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, a number of rivers arise from these mountains. These rivers throughout the year. These rivers flow throughout the year. One question over here. Show with the help of the diagram how arrangement of atoms in different solid, liquid and gases. So look this question's answer. बच्चों पेज नंबर 153 देखो, ये सबसे ऊपर जो डायग्राम दिया हुआ है दिखाऊं तुम्हें? ये लो, दिस वन, ये जो डायग्राम है ये ला, दिख गया? दिस वन, ये डायग्राम तुम लोगों को बनाना है, जो दिया हुआ ये डायग्राम तुम लोग बना लो। गॉट इट? तो ये सॉलिड हो गया, लिक्विड भी हो गया, गैस भी हो गया। लिक्विफाइंग कल बता ही दिया, मेल्टिंग, सॉलिड क्या होगा? मेल्ट होगा, मेल्ट होगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। लिक्विड अगेन बॉइलिंग करेंगे तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपराइजिंग, वेपराइजेशन। जब इसको ठंडा करेंगे तो क्या हो जाएगा? गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड, कंडेंसेशन, कंडेंसिंग लिखा हुआ सामने। So liquid again on cooling the liquid convert into solid. Particles लिखा हुआ ही है। Solids particles are closely packed, they can't move, but they only vibrate. फड़फड़ा सकते हैं, जा नहीं सकते। Liquids closely packed, लेस या लूजली पैक्ड कर दो, लेकिन they are closely packed than the gases, more closely packed. Gases से comparative तो ज्यादा पास पास है ना, लेकिन liquid के comparatively loosely packed. Got it? Now in this way we have seen the chapter 21 finish कर दिया है।
Now we are going to discuss our next new chapter, that is the seeing is believing. कोशिश करता हूं मैं अभी का भी इस 22nd चैप्टर को नमस्ते कर दे, कल इसके क्वेश्चन आंसर भेज दूंगा. So look here, you know well, there are some of the materials like the glass, air, clean water. These are the materials through which light can pass completely. ये देखो, glass, light can pass completely. बच्चों, वो मटेरियल जिनसे लाइट फुल्ली कंप्लीटली पास हो जाती है, ऐसे मटेरियल्स को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. सेकंड, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं, लुक हियर, this is door, and can you see across this door? This is the wall. Can you see what is behind the wall? No. Some of the materials, some of the materials through which there are some of the materials through which we can see light can pass completely. Some of the material through which light can pass completely, such kind of materials are known as transparent objects. Some of the materials that do not allow to pass light, जिनके जो लाइट को पास होने को अलाउ करते ही नहीं है, डोर, वुड, पेपर, वॉल्स, such kind of objects are known as opaque objects. क्या कहते हैं इनको हम लोग? opaque objects. अब कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं, कुछ तो ऐसे हुए जो लाइट को पूरा पास कर देते हैं, देख ही रहे हम लोग. कुछ ऐसे जो लाइट को पास करते ही नहीं, तो क्या कहेंगे? ओपेक. जो लाइट को पास करेंगे ट्रांसपेरेंट, लाइट को पास नहीं करेंगे ओपेक. अब कुछ ऐसे भी होंगे जो लाइट को पास करेंगे लेकिन कम अमाउंट में, एंड लेस एक्सटेंट. जैसे ये ग्लास है, अब इस ग्लास के ऊपर मैं क्या करूं? कलर कर दूं. आई मिक्स सम कलर इन द ग्लास, कलर्ड ग्लास, गोगल जिसको हम लोग कहते हैं. और जो गोगल्स है, अब वो गोगल्स कलर्ड हो गए, काले काले काले, पिंक कलर्ड, ब्राउन कलर्ड, डिफरेंट कलर्स ऑफ दी गोगल्स. अब ये गोगल्स जो हैं, इन गोगल्स से क्या होगा? लाइट पास होगी लेकिन लेस एक्सटेंट. लाइट तो पास होगी लेकिन पूरी तरह से नहीं, कुछ अमाउंट. ग्लास हम अपनी खिड़कियों पर पेंट कर देते हैं, अंदर से बाहर देख सकते हैं. कार है, कार के ग्लास के ऊपर हमने क्या कर दिया? फिल्म चढ़ा दिया. नाउ वी कैन सी आउटसाइड बट द आउटर पर्सन कांट सी इनसाइड. बाहर वाला अंदर नहीं देख पाएगा, अंदर वाला बाहर देख सकता है. Such kind of objects are known as translucent object. क्या कहेंगे बच्चों? Translucent objects. So objects are of three types. Objects are of three types. Number one, transparent objects. Number one objects are the transparent objects. ठीक है? The objects दिख रहा है? The objects
which the objects which allow light, the objects which allow light to pass through them, to pass through them completely. The objects which allow light to pass through them completely called as transparent objects. Called as transparent objects. लिख लेंगे एग्जाम्पल क्लीन वाटर, क्लीन वाटर. नेक्स्ट वन, सेकंड एग्जाम्पल क्या हो गया? एयर, ग्लास. गॉट इट? सेकंड, opaque objects. Opaque objects. The objects which do not allow, the objects which do not allow light to pass through them, to pass through them, the objects which do not allow light to pass through them are called as opaque objects. Example, wood, paper, wood, paper, wall. Got it? Now, translucent objects. Translucent objects. What do you mean by transparent, translucent objects? The objects which allow light to pass through them, to pass through them, which allow light to pass through them partially. The objects, तो यहां पर क्या हो बच्चों? लाइट तो पास हो रही है लेकिन कैसी? पार्शियली. The objects which allow light to pass through them partially. Example, butter paper, बटर पेपर. बच्चों जो नॉर्मल पेपर है, रुक जाओ फोटो खींची भेज रहा हूं. जो नॉर्मल पेपर है, नॉर्मल पेपर इज दी ट्रांसपेरेंट, सॉरी ऑपिक. लेकिन उस पेपर के ऊपर क्या डाल दें? थोड़ा ऑयल डाल दें. क्या डाल देंगे बच्चों? ऑयल. तो जैसे ऑयल डाल दिया तो क्या हो जाएगा? ये ऑयली पेपर. और ऑयली पेपर कैसे हो जाएगा? ट्रांसल्यूसेंट ऑयली पेपर. इसके अलावा इसमें जो ग्लास है, ग्लास के ऊपर हमने कलर डाल दिया तो क्या कहते हैं उसको? फ्रोस्टेड ग्लास.
ये फ्रोस्टेड ग्लास। तो क्या क्या एग्जांपल हो गए? फ्रोस्टेड ग्लास, बटर पेपर एंड ऑयली पेपर। बच्चों, you use the lens, magnifying lens. When you use the magnifying lens, take a lens, यहाँ पर पेपर रखा नीचे, अब इसको पेपर पर ऊपर नीचे फोकस किया, एक शार्प पॉइंट बनाया। अब शार्प पॉइंट बनाया तो वो किसकी इमेज है? सन की। अब वो क्या करेगा? एक पॉइंट ऑफ फोकस हो जाएगा। नाउ पेपर स्टार्ट टू बर्न, थोड़ी देर बाद पेपर जलने लगता है, जलने लगता है। तो बच्चों, इन दिस वे दिस इज द मैग्नीफाइंग लेंस। ये देखो, इसने क्या किया? पेपर क्यों जलने लगा? क्योंकि सनरेज जो थी उसको एक पॉइंट पर ला करके पास ले आए, तो क्या हो जाएगा? पेपर जलने लगता है। या फिर क्या करेंगे? ये ऐसे लाइट रेज जो आ रही है, इन लाइट रेज को बिखेर देता है। ये जो लाइट रेज है, इनको जब तक पास पास थी उनको बिखेर दिया। स्केटरिंग ऑफ लाइट। क्या करेंगे? स्केटरिंग ऑफ लाइट। तो इसको हम लोग कहते हैं डिस्पर्स, और इसको कहते हैं फोकस। तो अ पीस ऑफ ग्लास विच इज यूज्ड टू डिस्पर्स और फोकस द लाइट इज नोन एज लेंस। तो लेंस की डेफिनेशन, a piece of glass, दिख रहा है? which is used, a piece of glass which is used to focus or disperse, बिखेर देना, स्केटरिंग और डिस्पर्स दी लाइट इज कॉल्ड लेंस। क्या कहते हैं बच्चे इसको? इस पीस ऑफ ग्लास को, दिस पीस ऑफ ग्लास इज नोन एज लेंस। दिख रहा है? टेक स्क्रीनशॉट, डू फास्ट। बच्चों, लेंस क्या होता है? कांच का टुकड़ा। ये कांच में, ये हमारे चश्मे में लगा हुआ है, लेंस है। माइक्रोस्कोप में कांच के टुकड़े लगे होते हैं, क्या कहते हैं? लेंस। हो गया? नाउ लुक इन योर बुक। एक बार जल्दी से बुक देख लेते हैं, फिर क्लास को खत्म करेंगे, टाइम भी हो गया। चलो।